Yeah, so we were considering last, 2 weeks before, 2 weeks ago, Romans chapter 9, which was dealing with sovereignty of God. जो हम पिछले 2 हफ्ते पहले हमने देखा कि परमेश्वर का जो परम अधिकार है इस सारे संसार पर, उसके बारे में हमने सुना. So we saw verse 15, which says, God is telling, I'll have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. और हमने जो रोमियो का 9वां अध्याय और उसका 15वें वचन में सुना कि मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा. And verse 16 also we considered. So then it does not depend on the man who wills or the man who runs, but on God who has mercy. और 16वें वचन को भी हमने देखा जहां लिखा है, अतः यह ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है. So God is, we can have a tremendous will. That means we can have a great desire to follow Christ, which is good. We also may want to run very fast in the race, which is also very good, but still we can fail because it depends on God who shows mercy. हमारे अंदर ऐसी इच्छा हो सकती है कि हम पूरी तरह प्रभु यीशु के पीछे चलें या इस दौड़ में हम पूरी तेजी से दौड़ें, ये भी हमारी आशा हो सकती है. लेकिन अगर प्रभु का जो दया है वो हमारे ऊपर नहीं है तो फिर ये नहीं हो सकता. The reason is because God in the new covenant works on the principle of faith and on the principle of humility. क्योंकि जो परमेश्वर है वो जो नई वाचा में हम देखते हैं कि वो जो है कृपा के ऊपर और विश्वास के ऊपर वो कार्य करते हैं. This is what Paul is going to explain in the latter portion of chapter 9 and 10 and also chapter 11. और इसी बात को हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो हैं 9वें अध्याय के अंत में और 10वें अध्याय और 11वें अध्याय में भी इसी के बारे में वो बात करते हैं. Sometimes when we read these portions, we may think that God works arbitrarily. कई बार हमें ऐसे महसूस होगा कि परमेश्वर जो है अपने ही इच्छा या अपने खुद के कुछ चाहत के अनुसार वो कार्य करते हैं. But we won't be able to understand everything about God because Bible says his thoughts are so above us as heaven is above the earth. लेकिन हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम जो भी परमेश्वर करते हैं उसे पूरी तरह समझ पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार वचन में लिखा है कि जो उनकी सोच है वो हमारी सोच से बहुत ज्यादा बढ़कर है, जैसे धरती से आसमान ऊंचा है. We can see in verse 17 something is written about Pharaoh. और हम 17वें वचन में जो फिरौन के बारे में कुछ लिखा है वो There's a portion from the Old Testament where it's written, for this very purpose I raised you up to demonstrate my power in you and that my name might be proclaimed throughout the whole earth. और ऐसे लिखा है कि मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो. We can see that God hardened the heart of Pharaoh. हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो फिरौन का हृदय उसको कठोर किया. The word God had for Pharaoh is, let my people go. That was the word God gave to Pharaoh through Moses. फिरौन के द्वारा जो वचन मूसा के द्वारा दिया गया वो ये था कि मेरे लोगों को मुक्त करो कि वो जाएं इस मिस्र से.
but we know that he refused, and as he refused, God hardened his heart. और हम देखते हैं कि उन्होंने उसका इनकार किया तो उनका जो हृदय है वो कठोर हो गया. And we also know that he even after those 10 miracles, he even followed Israel in the Red Sea, and they all they all died in the Red Sea. Egyptian army died in the Red Sea. और हम देखते हैं कि जो 10 चमत्कार थे उनको परमेश्वर ने किया, और फिर भी जो फिरौन है वो इजरायलियों के पीछे वो निकला, और जो लाल समुंदर के अंदर वो उनका पूरा जो सेना है वो खत्म हो गई. The very act of God hardening Pharaoh's heart was the thing that enabled God's power to be shown and God's name to be proclaimed throughout that known earth at that time. तो हम देखते हैं कि फिरौन का जो हृदय कठोर होने के कारण जो परमेश्वर का सामर्थ और उनके नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हुई. Just two verses I just want to show you. One is from Exodus chapter 15 verse 15 and 16. हम दो ऐसे वचन देखेंगे जो निर्गमन के पुस्तक 15 अध्याय और उसका 15 and 16. 15 और 16वें वचन में है. So, because God did this great miracle of dividing the sea and killing all the Egyptian army, it is written in chapter 15 verse 15, the chiefs of Edom were dismayed, the leaders of Moab trembling gripped them, all inhabitants of Canaan have melted away, terror and dread fall upon them. By the greatness of thine arm, they are motionless as stone until thy people pass over, O Lord, until the people pass over whom thou hast purchased. तो हम यहाँ देखते हैं कि जो लाल समुंदर को बांटा गया और जो सेना है मिस्र की उसको नष्ट हो गया. इसके कारण यहाँ 15 और 16 वचन में लिखा है कि एदोम के अधिपति व्याकुल होंगे, मोआब के पहलवान थरथरा उठेंगे, सब कनान निवासियों के मन पिघल जाएंगे, उनमें डर और घबराहट समा जाएगी. तेरी भां के प्रताप से वे पत्थर के समान अबोल हो जाएंगे, जब तक हे यहोवा तेरी प्रजा के लोग निकल न जाएं, जब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है पार ना निकल जाएं. We can see how God accomplished this by hardening the heart of Pharaoh. हम देख सकते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने इस कार्य को पूरा किया जो फिरौन के मन को कठोर करने के बाद. One more verse, Joshua chapter 2 verse 10 and 11. और एक यहोशू का दूसरा अध्याय उसका 11, 10 और 11. We can say because Rahab, these are the words of Rahab, because Rahab saw all this, she had a desire to turn to God, true living God. हम यहाँ देखते हैं कि क्योंकि रहाब ने इसके बारे में सुना, इसीलिए उनका भी मन परमेश्वर के ओर फिरा. And we can see verse 10, Joshua chapter 2 verse 10 is written, Rahab is telling, for we have heard how the Lord dried up the water of Red Sea before you when you came out of Egypt. And also verse 11, and we have heard it, our hearts melted, and no courage remained in any man any longer because of you. For the Lord your God, he is God in heaven, above the earth and earth beneath. Verse 10 and 11. तो हम देखते हैं यहोशू के दूसरे अध्याय के 10वें वचन में लिखा है, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुंदर का जल सुखा दिया. तो और 11वां वचन, और ये सुनते ही हमारी मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा
जो ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। And we also know from Psalm 78 that God told Israelites, you have to teach your children all these great acts of the Lord. और हम जो भजन संहिता 78 में देख सकते हैं कि प्रभु कहता है कि तुम अपने बच्चों को इन सब बातों को बताएं। That is the reason, that is how faith can be developed in their hearts. अगर वो इस बारे में सुनेंगे तब उनके दिलों में जो है जो विश्वास है वो उत्पन्न होगा। I want to encourage all who hear me. See, God has done in our life also wonderful things. It is good to tell all these things to our children, and it is see some miracles, some wonderful things God has done, and there they can also be learn to pray and develop faith in God. इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भी अपने बच्चों को ये बताएं जो भी चमत्कार या कुछ कार्य जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, इसको हम बच्चों को बताएं, क्योंकि तभी उनके दिल में भी जो है विश्वास पैदा होगा। We are serving an amazingly wonderful God for whom, as we sang that song, absolutely nothing is impossible. हम एक ऐसे परमेश्वर जो बहुत ही महान और अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु हैं, इनकी हम उपासना करते हैं, तो हमें अपने बच्चों को इन सब बातों को बताना चाहिए। Sometimes when this temptation to discouragement and anxiety comes, I think about the nature, how wonderful the universe is, the stars and moon, and I mean some of these suns are so huge that that some of these stars are so huge that so many suns can be put in them. Such huge universe God has created, and we are serving such a wonderful God for whom nothing is impossible. जब भी मुझ में कुछ निराश होने या निरुत्साहित होने का भाव आता है, तो मैं अपने आप को ये याद दिलाता हूँ कि परमेश्वर ने जो सारे भूमंडल को बनाया है, वो कितने अद्भुत कार्य उन्होंने किया है, और ऐसे सितारे हैं जिनमें हजारों सूरज के समान सूर्य वो एक ही सितारे में बैठ सकता है। तो कितना अद्भुत परमेश्वर है जिसका हम आराधना करते हैं। Verse 18. Brother Sam, can you be a little louder? Yeah, verse 18 says, He has mercy on whom he desires, and He hardens whom He desires. और जैसे हम देखते हैं रोमियो 9 का 18 में कि verse 18. 9 का 18 इसीलिए वो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। So when we read that, the natural question that comes to us is what we read in verse 19. You will say to me then, why does he find fault? For who resists his will? In other words, what he's telling is, if God is hardening the heart of people like that, then what chance we have got? I mean, God does everything just like that as He wills. तो साधारण रूप से हमारे मन में ये प्रश्न उठेगा जब हम ऐसा जैसे इधर लिखा है 18 वचन में, तो यही प्रश्न उठता है कि जब परमेश्वर ही कठोर करता है किसी के दिल को, तो फिर कौन उसका वह फिर क्यों दोष लगाता है, कोई उसकी इच्छा का सामना करता है। The right answer to that is given in verse 20. On the contrary, who are you, O man, who answers back to God? The thing molded will not say to the molder, why did you make me like this? Will it? तो हम 20वें वचन में उसका उत्तर देख सकते हैं कि हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई
वस्तु गढ़ने वाले से कह सकता है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? Verse 21, or does the potter have the right over the clay to make from the same lump one vessel to honorable use and another for common use? और क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? See, sometimes such questions come to our mind also. Why I am born in this family, or why is my situation like this? Why is my financial situation like this? Why I am only going through all this rejections, or such questions come to all of our mind. तो हम सबके दिल में भी ऐसे प्रश्न आते होंगे कि मेरी ही क्यों ऐसी परिस्थितियां बहुत कठिन हैं, या मैं क्यों इस परिवार में पैदा हुई, या मेरी आर्थिक स्थिति क्यों इतने मुश्किल में है, और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे दिल में उठते होंगे. But for that also the answer is this: God is a sovereign God, and he has got some wonderful plans, but in the end result of this plan is God's plan for me are perfect and for my very best. As we read one verse which says, the plans of God are plans for welfare, not for calamity, to give us a future and a hope. और जब हम ऐसा सोचते हैं, उसका भी एक ही उत्तर है कि जो परमेश्वर के जो योजनाएं हैं वो एकदम उत्तम योजनाएं हैं. हम उसे समझ नहीं पा सकते, लेकिन जो अंत में उनकी योजना है, जैसे एक वचन है जहां कहा गया है कि हमारे भलाई के लिए और हमारा जो भविष्य है वो सुंदर हो, इसी के लिए परमेश्वर ने इन सब बातों की योजनाएं की है. We also see here that God makes some vessels for honorable use and some for common use. और हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ बर्तन जो है आदर के लिए और दूसरे जो है अनादर के लिए बनाए गए हैं. In 2 Timothy chapter 2 verse 21 it says, if anyone cleanses himself from these things, actually the earlier portion it is written about empty chatter, worldly chatter, etc., and other ungodliness. That verse says he will be a vessel of honor to the master. और हम देखते हैं इसके बारे में जो है दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय और उसका 21 वचन में ऐसे लिखा है कि यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा. और हम उसके अगले वचन पिछले वचन में देख सकते हैं कि कुछ मिट्टी के बर्तन, कुछ सोने चांदी के बर्तन, कोई आदर के लिए और कोई अनादर के लिए बनाया गया है. So we all have opportunity to become an honorable vessel to the Lord Jesus Christ. हम सबको ये जो है मौका हमें मिलता है कि हम सब जो हैं परमेश्वर के आदर के लिए बनाए जाएं. In the everyday life, if we cleanse ourselves from the ungodly ways and purify ourselves, we can all become honorable vessels. तो अगर हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, जो भी बुराई है हमने उसमें से हम शुद्ध करते हैं, तो हम आदर के बर्तन बन सकते हैं. We can see in verse 22, what if God, willing to demonstrate his wrath and to make his power known, endured with much patience vessels of wrath prepared for destruction. That means even the vessels of wrath also God showed tremendous patience to them. तो हम 22वें वचन रोमियो 9 का 22 में ऐसे देख सकते हैं को, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही. तो हम देख सकते हैं जो क्रोध के बर्तन हैं उनके ऊपर भी परमेश्वर ने दया दिखाया. We can remember even the example of Pharaoh. God gave him so many chances
for him to turn back. हम देख सकते हैं फिरौन के बारे में भी परमेश्वर ने उन्हें बहुत सारे ऐसे मौके दिए कि वो पश्चाताप करें. Think of a vessel like Saul. God also gave him many years. He was, even after God chose David, he continued to be in the throne for many years. God was trying to bring repentance in him, but we can see in fact he hardened his heart. और शाऊल के बारे में भी हम देख सकते हैं कि दाऊद को चुनने के बाद भी परमेश्वर ने जो शाऊल है उनके ऊपर बहुत दया दिखाया कि वो पश्चाताप करें, लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने अपना हृदय कठोर किया और उन्होंने अपने जो पाप से उन्होंने मन नहीं फिराया, तो उन्होंने अपना दिल कठोर ही करते रह गए. So this verse 23 is a very encouraging word. It's written, he did so in order that he might make known the riches of his glory upon vessels of mercy which he prepared beforehand for his glory. और 23वां वचन जो है हमें बहुत प्रोत्साहन देने वाला वचन है, जो कहता है कि और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की. Then we can see some verse 24, even as whom he also called, not among Jews only, but also from among Gentiles. और 24वें वचन में हम देख सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ जो यहूदियों में से ही नहीं, लेकिन अन्य जातियों में से भी ऐसे लोगों को बुलाया. So that was a tremendous mercy of God that we were Gentiles and God chose us to show, we became vessels of mercy and God showed his glory. He poured his Holy Spirit upon us and he showed his tremendous mercy and glory upon us. तो ये परमेश्वर की दया को प्रकट करता है कि उन्होंने जो अन्य जाति में है हम लोग, हम पर भी उन्होंने दया दिखाया और हमें दया का बर्तन बनाया और हम पर अपना जो पवित्र आत्मा है उसे उंडेला और इस प्रकार हमें उन्होंने चुना. We can see this. Paul is quoting certain portions from the Old Testament. First of all, in verse 25, a portion from Hosea, he is telling. और हम 25वें वचन में देख सकते हैं कि पौलुस जो है वो होशे की पुस्तक जो पुराने वाचा में है उसके वहां में से वो कहते हैं. I'll just read the same from Message Bible. It's written, I'll call nobodies and make them somebodies. I'll call unloved and make them beloved. So in the place they held out, you are nobody. They are called God's living children. तो मैं मैसेज बाइबल से पढ़ रहा हूँ जहाँ ऐसे वो अनुवाद किया गया है कि जो कुछ भी नहीं है, जो शून्य है, उनको परमेश्वर लेकर उन्हें कुछ ऐसे बर्तन बना देते हैं और जो कुछ भी नहीं थे और जो कहीं के नहीं थे उनको उन्होंने अपना प्रजा बनाया और अपने खुद के संतान के रूप में वो बुलाए गए. I want to encourage all of us, let us remain as nobodies, then only God can work in us. तो मैं आप सबको प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि हम सब शून्य बनकर जिए, तभी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आ सकता है. Once when we came to Christ, we were nobodies. God wants us to continue as nobodies because such vessels only God can turn into vessels of honor. तो जब हम पहली बार जब परमेश्वर यीशु मसीह के पास आए तो हम शून्य बनकर आए, उसी प्रकार हम बने रहें, क्योंकि जो शून्य बनकर रहते हैं उन्हीं के ऊपर परमेश्वर अपना अनुग्रह उंडेल सकता है. And verse 26 is another quoting from Isaiah, and that also I want to read in Message Bible.
is written like this: if each grain of sand on the seashore were numbered, and the sum labeled chosen of God. तो मैं 27 वचन को भी मैसेज बाइबल के अनुवाद के अनुसार पढ़ना चाहता हूं कि अगर हर एक जो दाना है, जो समुंदर के जो रेत का जो दाना है, उसको अगर गिने और उस पर एक जो लेबल लगाए जाए कि ये चुने हुए हैं, and there will be numbers still and not names. they will be Numbers, just numbers of sands and not names. तो फिर भी वो सिर्फ एक जो गिनती ही रह जाएंगे, उन पर कोई नाम नहीं लिखा जाएगा. Salvation comes by personal selection. जो उद्धार है वो परमेश्वर जो व्यक्तिगत रूप से लोगों को बुलाते हैं, वैसे ही चुनाव होता है. God doesn't count us, he calls us by name. Arithmetic is not his focus. जो परमेश्वर जो हैं, जब हमें बुलाते हैं, वो गिनती के रूप में नहीं बुलाते, हमें नाम लेकर वो बुलाते हैं. हम उनको गणित का इसमें कोई कार्य नहीं है. See, there is a tremendous encouragement. God calls us by name. He calls us so valuable. We are so valuable before him. We are not just a number, say number 375. No, we are not like that. God calls us by name, and we are sons of God, and he is our father. It's a tremendous relationship. तो ये जो हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, ये बहुत ही अद्भुत एक रिश्ता है. जैसे एक पिता का अपने बेटे के साथ, बेटी के साथ होता है, वो सिर्फ ऐसे गिनती से नहीं 1 2 3 करके ऐसे नहीं बुलाते अपने बच्चों को, वो नाम लेकर बुलाते हैं अपने बच्चों को. So verse 30 onwards, Paul is telling the conclusion now. What shall we say then? The Gentiles who did not pursue righteousness, they attained righteousness, even righteousness which is by faith. But Israel, pursuing the law of righteousness, did not arrive at that law. और तीसवा वचन, अतः हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है. But Israel, verse 31 also, sister. 31 वचन भी, परंतु इस्राएली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे. See, this is a tremendous verse. We all have to remember. It's possible for us also to pursue righteousness just like Israel and never arrive at that righteousness, because the reason is written in verse 32. तो हम ये हमें समझने की बहुत ज़रूरत, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसे समझे कि अगर हम जो है जो धार्मिकता है उसका खोज हम करते हैं, जिस प्रकार इस्राएली लोगों ने किया, फिर भी ऐसा हो सकता है कि हम उस तक नहीं पहुंच पाए, और उसका कारण जो है 32 वचन में दिया है. It's written because they did not pursue it by faith, but as though it were by works, they stumbled over the stumbling stone. और हम देखते हैं कि उसका कारण दिया है कि किस लिए, इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे, उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई. See, this can happen to us also. We can also have we can try to be good on our own, with our own effort, try to follow some laws, but if we don't follow the principle of faith, we will never arrive at God's destination. तो ये हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि हम व्यवस्था के पीछे चले, कार्यों हम अपने ही खुद के अच्छे कामों से इस धार्मिकता को पाने का कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर हम करेंगे तो हम उसे नहीं पाएंगे, क्योंकि सिर्फ विश्वास के द्वारा हम इस धार्मिकता को पा सकते हैं. God's intention is that God's intention is that we become people who are helplessly depend on him every moment, and through him, and like that only we can come to God's righteousness.
और परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसे निस्सहाय हो जाए कि हम पूरी तरह परमेश्वर पर ही हम निर्भर रहें और उन पर ही ताकते रहें और उनकी सहायता की ओर हम देखते रहें, तभी हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। I want to read verse 32 in Message Bible. People of Israel were so absorbed in God's projects that they did not notice God right in front of them like a huge rock in the middle of the road, and they stumbled into him. तो हम ये जो 32वां वचन है उसे भी मैं मैसेज अनुवाद में पढ़ना चाहता हूँ कि जैसे जो इज़राइल के लोग थे वो अपने ही कार्यों में जुटे हुए थे और वो अपने ही कर्मों की खोज में कर्मों के द्वारा परमेश्वर की खोज करते रहे, और जो परमेश्वर है जो उनके सामने एक महान जो पत्थर है या पहाड़ है वैसे उनके सामने खड़े थे, लेकिन वो उन्हें देख नहीं पाए, लेकिन वो उस पत्थर पर वो ठोकर खाए। Just think of the people of Israel. They were studying the law. They were very faithful to attend the synagogues and very zealous for the religion. But when the second person of Trinity came, they called him Beelzebub, prince of demons. हम देखते हैं कि जैसे जो इस्राएली लोग थे वो पूरे दिल और मन से वो व्यवस्था का खोज करते थे, उसका अध्ययन करते थे और बहुत कोशिश करते थे कि उसके अनुसार चले, लेकिन जब यीशु मसीह जो तृत्व का दूसरा व्यक्ति है जब इस दुनिया में आया तो वो ठोकर खा गए, वो समझ ही नहीं सके कि ये परमेश्वर का पुत्र है और उनको उन्होंने बेलसेबूब करके पुकारा। We can see verse 33. This is true even today. Behold, God is telling, I lay in Zion a stone of stumbling and a rock of offense, and he who believes in him will not be disappointed. जैसे 33वें वचन में लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। See, if we try to reach God through our own efforts and our own determination, our own resolution, we will meet this stumbling, this huge rock on our way. तो अगर हम अपने ही प्रयास से, अपने ही कोशिश से जो परमेश्वर तक पहुंचने का प्रयास करते रहेंगे तो हम ऐसे ही बहुत ही बड़ा जो बाधा है एक पहाड़ के समान उसका हमें सामना करना पड़ेगा। Law is man's effort to reach God's standard. जो व्यवस्था है वो मनुष्य का प्रयास है कि वो परमेश्वर तक पहुंच पाए। Man completely failed. और मनुष्य उसमें पूरी तरह हार जाता है। Today, God is coming with grace and faith. He is extending his hand, and if we give him our hand to his hand, he can raise us to his level. तो आज जो है परमेश्वर अपनी कृपा और विश्वास के साथ हमारे पास आ रहे हैं और अपना हाथ हमारे ओर बढ़ा रहे हैं, और अगर हम अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाएंगे तो हमें उठाकर अपने स्तर तक ले जाएंगे। But if we try in our own strength, and if we think about ourselves as somebody great, we will meet him as this huge rock on the way, just impossible to progress. तो अगर हम अपने ही प्रयास से पहुंचना चाहते हैं तो हम परमेश्वर को इस बड़े चट्टान के रूप में हम देख पाएंगे और हम उन तक पहुंच नहीं पाएंगे। So let us all follow the principle of faith, helpless dependence on God. तो हम इसी प्रकार जो निस्सहाय होकर पूरे जो अपने परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें। Thank you, sister, for wonderful translation. Thank you, brother. This passage is also one of the most difficult ones to understand. तो मुझे भी ऐसे ही महसूस हुआ कि ये ऐसा एक वचन है जो जिसे समझना मुश्किल है। But yes, Sam has very
well explained. लेकिन ब्रदर सैम ने इसको बहुत ही आसान रूप से हमें समझाया है. We clearly see 2-3 things. So this passage essentially talks about sovereignty of God and His infinite mercy. हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर के दो गुणों के बारे में बताया गया है कि उनके पास जो है सर्व अधिकार है और वो जो महान जो दया उनका उसके बारे में हम देख सकते हैं. Yeah, as brother mentioned, when we read through there, several questions will arise. But like, who are we to ask the Creator? तो जैसे ब्रदर ने हमको समझाया कि जब हम इस बारे में पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में ऐसे प्रश्न उठते हैं, लेकिन हम कौन हैं जो सृष्टि करता है उससे प्रश्न करने के लिए. So one thing we need to always keep in mind that we are saved by His mercies. हमें हमेशा ये अपने मन में थामे रहना चाहिए कि हम उनके दया के कारण ही हमारा उद्धार हुआ है. And we are saved from the wrath of God. और हमें जो है परमेश्वर के क्रोध से हमें परमेश्वर ने बचाया है. So there is nothing we deserve. If at all we deserve anything, it's only hell. और अगर हम किसी के योग्य हैं, हम सिर्फ जो है नरक के योग्य हैं. So from billions of people, God has chosen us. So we have to be grateful to God, and we are privileged that God has chosen from so many crores of people. और करोड़ों लोगों में से परमेश्वर ने हमें चुना है. ये ही बहुत ही परमेश्वर की दया है. And another point that is repeatedly emphasized by Paul in this epistle is it's all by faith, not by works. और दूसरी एक बात जो पौलुस ने बताया है कि ये सिर्फ विश्वास से है. There is nothing to boast in it. It is by God's mercy we are saved, and just by believing, just by having faith only we are saved. और हम ये समझ सकते हैं कि हमें इसमें घमंड करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ विश्वास के द्वारा हमें ये उद्धार प्राप्त हुआ है. And the Romans is like it's a very fundamental to Christian life, because the whole of Christian life is God-centered life, and that is what is emphasized in this episode. रोमियो की इस पुस्तक में ऐसे लिखा है कि जो साधारण रूप से एक क्रिस्ती के जीवन में होना चाहिए उसी के बारे में यहाँ बताया गया है. I want to thank Brother Sam. Oh, very wonderful way to let us know about God's mercy and His love. मैं ब्रदर सैम का बहुत ही आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें समझाया कि परमेश्वर के प्रेम और उनके दया के बारे में. But I want to quote on from the verse 20, where it says, "But who are you, O man, to answer back to God? Will what is Motet says to the mortal, why have you made me like this?" और मैं 20वें वचन को पढ़ना चाहता हूँ. हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ाने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? So when it says, "Why did you make me like this?" We need to come back and we need to realize that, Jesus, the Son of God, and when He became nothing, did He answer God? Why did you make me like this? हमें एक बात समझना चाहिए, जिस प्रकार परमेश्वर के पुत्र जब इस दुनिया में आए और वो शून्य बनकर वो इस दुनिया में चले, तब क्या उन्होंने परमेश्वर से ये प्रश्न किया कि मुझे ऐसा क्यों बनाया? Obeyed with obedience and with love, He endorsed the cross. हम देखते हैं कि उन्होंने आज्ञाकारी बनकर और प्यार के साथ उन्होंने जो क्रूस है उस क्रूस को सहा. This is what shows the mercy, and this is what shows the love.
यही बात है जो परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के दया को दर्शाता है. That's why I always like to speak about the cross, because unless the cross is not been spoken, I would still say that we are wearing away from Christianity or from the Word of God. तो इसीलिए मैं क्रूस के बारे में ज़्यादा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम क्रूस के बारे में बात नहीं करेंगे तो इसका ये मतलब हुआ कि हम जो सच्चा ख्रिस्ती जीवन है उससे बहुत ही दूर हैं. Cross is something that teaches us everything. क्रूस ऐसी एक बात है जो हमें सब कुछ के सब बातों के बारे में हमें समझाता है. How we need to humble ourselves, how we need to be obedient, what kind of love we must have. वो हमें ये सिखाता है कि हमें कैसे आज्ञाकारी बनना चाहिए, कैसे हमें प्रेम करना चाहिए, ये सब हमें सिखाता है. And most of all, what is mercy and forgiveness. और सबसे प्रथम वो हमें दया और क्षमा के बारे में हमें सिखाता है. Only when I put the cross in front of me and when I look at it, I say, looking at Jesus at the cross, hanging, all that he, all that he bared on that cross, when I look at it, what do I actually see on that cross? जब मैं अपना जो आंख है क्रूस की ओर उठाता हूँ और यीशु मसीह को उस क्रूस पर टंगे हुए देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ? We say, oh Jesus, but I see myself, because that was a substitute. Jesus was a substitute who took my place for him. That is mercy. And that is love. तो जब मैं यीशु मसीह को उस क्रूस पर टंगा हुआ देखता हूँ तो मैं यीशु को नहीं देखता, मैं अपने आप को देखता हूँ, क्योंकि यीशु हमारे बदले में वहाँ वो टंगे हुए थे और उनका जो प्रेम है वो हमें दिखता है. Only in our life when we endorse the cross, actually in suffering, believing and trusting in God, that when we become nothing, surely he will make us something. तो जब हम उस क्रूस को समेट लेंगे और हम शून्य बन जाएंगे, तभी हम जो हैं सच्चे ख्रिस्ती बन सकते हैं. Only when we endorse the cross into our life and really bear what Jesus endorsed, that suffering in our life, that we can say, yes, during this suffering, God is going to make us something. और हम ये कह सकते हैं कि जब हम उस क्रूस को कबूल करेंगे तो जो है परमेश्वर का जो कष्ट या उसमें से गुजरने के लिए हम तैयार होंगे, तभी हम शून्य बन सकते हैं और प्रभु हमें एक दिन ऊपर उठाएगा. And this faith we must have in ourselves, that only when we are nothing, God will raise us up to something. और हमें ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि जब हम शून्य बन जाएंगे तभी परमेश्वर हमें जो शिरोमणि तक पहुंचाएगा. Brothers and sisters, church, I want to say, like, always remember the cross and see what Jesus bared for us, because only when we endorse that cross in our life, we will surely have the same humbleness, the same love, the same forgiveness that will have. That is from God itself. Amen. God bless you all. तो जब हम उस जो क्रूस है उसको पूरी तरह स्वीकार करेंगे, तभी हमारे जो दिलों में उस प्रकार का प्रेम, उस प्रकार का क्षमा, और जब हम नम्र होंगे तभी हमें ये सब बातें हमें उपलब्ध होगा. मैं बांटना चाहूँगी जो ब्रदर ने आज दो बांटा है, उसमें से मुझे जो प्रोत्साहन मिला है वो उसी वचन से है जो जहाँ कहा गया है कि मैं कौन हूँ
पूछने के लिए कि परमेश्वर आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। तो जैसे हमने सुना कि जब परमेश्वर ने शाऊल को चुना और जब वो पाप में गिर गए तो परमेश्वर ने कैसे उन्हें बहुत बार उन्हें ऐसे मौका दिया कि वो पश्चाताप करें। तो वैसे ही प्रभु भी हमें बार बार हमें वो धिक्कारते नहीं हैं जब हम पाप में गिर जाते हैं, लेकिन वो बार बार हमें मौका देते हैं और वो चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें और हम वापस परमेश्वर के पास आए। कि तो ये हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की दया कितना बड़ा है और कितना महान है, और सिर्फ हम विश्वास के द्वारा ही उस जो लक्ष्य है वहाँ तक हम पहुँच सकेंगे। क्योंकि जैसे हमने देखा कि अगर हम अपने ही कार्यों के द्वारा उस लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयास करेंगे तो हम जैसे वचन में कहा कि हम उस चट्टान पर हम ठोकर खाएंगे और हम जैसे इजरायली लोग जो अपने ही प्रयास से वो कर रहे थे, उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। और जिन्होंने विश्वास किया, ऐसे ही हमारे जीवन में भी जब हम बार बार गिरते रहते हैं तो हम निराश हो सकते हैं, लेकिन निराश ना होकर हमें विश्वास में हमें दृढ़ रहना चाहिए कि जो परमेश्वर ने हमें जो अपना वादा दिया है कि वो उसे पूरा करेंगे। और हम तो अयोग्य हैं, लेकिन परमेश्वर जो है जब हम उन पर उनके वचन पर हम विश्वास करते रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे तो वो हमें निराश नहीं करेंगे, वो हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने को हमें सहायता देंगे। इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। भाई सैम ने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया कि रोमन्स का 9वां अध्याय बहुत प्रोत्साहन करने वाले अध्याय है। हम इससे बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। मुझे वचन 16 में कुछ प्रकाशन इस तरह से मिला कि वहां पर लिखा है कि परमेश्वर जिसको ऊपर करुणा करना चाहता है वो करुणा करेगा, और जिसको ऊपर वो दंड देना चाहता है वो देगा। और आगे लिखा है कि परमेश्वर की जो कृपा है वो मुफ्त है, और वो हमारी कोशिश से उस कृपा को हम पा नहीं सकते हैं परमेश्वर से। हम जितना भी हमारी कार्य द्वारा या हमारी कृत्य के द्वारा हम कोशिश करेंगे, परमेश्वर की करुणा को हम पा नहीं सकते हैं। और ये भी नहीं सकता है कि परमेश्वर से हम जबरदस्ती भी नहीं कर सकते कि हमें वो कृपा जरूरत है। नहीं, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सारा अधिकार उसके पास है, और वो जिसको ऊपर करुणा दिखाना चाहते हो करुणा दिखाएगा, और जिसको ऊपर दंड देना चाहते दंड देगा। उसका हमको कोई हक नहीं है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि एक फेरो का एक अच्छा उदाहरण उसने बताया कि निर्गमन अगर 4:21 में अगर पढ़ेंगे वहां पर ये दृष्टांत हम देखते हैं कि फेरो हम देखते हैं कि परमेश्वर वहां पर कुछ बीमारियां, अलग अलग तरीका बीमारियां भेजते हैं। ये सारी चीज देखकर एक्चुअली फरो अपने हृदय दीन होकर परमेश्वर के पास आकर बोलना चाहिए कि हम पर दया कर। लेकिन हम देखते हैं कि वो ये कहता है कि परमेश्वर ये सारी जो बीमारियां हैं वो निकाल दो, लेकिन ये नहीं कहता है कि मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं पश्चाताप करके आपके करीब आता हूँ। तो इस तरह से उसकी चाल चलन नहीं होती है। बाइबल में लिखा है कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आप सचमुच दीन होकर परमेश्वर की तरफ मुड़ेंगे, यानी अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर की तरफ मुड़ेंगे, तो बाइबल में लिखा है कि उसकी करुणा बहुत उचित रूप से आपको मिलती है। बाइबल में लिखा है वचन। मैं ये वचन से बहुत प्रोत्साहन के हाँ, हमारे हर दैनंदिन जीवन में हम हर जगह पे हम परमेश्वर की तरफ मुड़ने के लिए प्रभु मौका देते हैं। हम कितना इस मौका का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो परमेश्वर का विरोध कर सकता है। जैसे कि फेरो कहा कि बीमारियां निकाल दो,
लेकिन मैं अपना पश्चाताप नहीं करूंगा। लेकिन मैं कहता हूं कि हम यही चीज करना चाहिए, प्रभु मुझे आपकी कृपा चाहिए, मैं मेरी ताकत से, मेरी सामर्थ्य से उस कृपा को मैं पा नहीं सकता हूँ, और मैं आपको डिमांड भी नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि कुमार मिट्टी के ऊपर अधिकार चला सकता है, मिट्टी को कोई अधिकार नहीं है। ब्रदर्स एंड सिस्टर याद रखो, हम मड से, मट्टी से बनाया गया, हमको कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है। हम जो कुछ भी पाया परमेश्वर से उचित रूप से। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि इतना अच्छा वचन हमको सुनने मिल रहा है। और मुझे लगा कि ये एक रियली एक प्रोफेटिक वर्ड है, क्योंकि हम मैं और मेरे हस्बैंड कल रात को ही बात कर रहे थे इसी टॉपिक, इसी टाइप के टॉपिक को लेकर। जैसे अभी ब्रदर सैम शेयरिंग कर रहे थे, उन्होंने एक चीज जो बोला मुझे छू गया कि परमेश्वर हर एक को अवसर देता है एक अच्छा बर्तन बनने के लिए, डे बाय डे हमारी लाइफ के अंदर, कि हम परमेश्वर के लिए एक अच्छा बर्तन बन सके। तो मुझे एक चीज स्मरण आया कि जैसे सॉल की लाइफ में जब भी उसको किंग बनाना था तो वो अपने आप को हाइड कर रहा था, वो आगे नहीं आ रहा था, वो शर्मा रहा था, हिचकिचा रहा था, वो अपने आप को शून्य कर रहा था कि उसे नहीं बनना, वो योग्य नहीं है। बट तभी परमेश्वर ने उसको किंग के लिए चुना। लेकिन जब उसके अंदर वो एक प्राइड आ गया कि मैं किंग बन गया हूँ, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर वो एबिलिटी है, तब परमेश्वर को लगा कि उसका लाइफ जो है वो परमेश्वर के सामने सही नहीं है, और तब परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया। तो कल मैं और मेरे हस्बैंड यही चीज शेयर कर रहे थे कि अगर हमारी लाइफ में कहीं पर भी ये चीज है कि हमारे पास जब इनिशियली कुछ चीज नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा सैलरी कम है या हमारे पास इनकम सोर्स कम है, तो हम उसी तरीके से अपना लाइफस्टाइल, अपना लाइफ जीने का कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा जितना पैसा है या जो भी अपने पास जितना सेविंग्स है उसी हिसाब से। पर थोड़ा सा हमारा एक्सपांड हो जाता है या हमारे लाइफ में कुछ चीज अच्छा, हमारा जो भी लाइक इनकम सोर्स अच्छा हो जाता है या कुछ, तो हमारे लाइफ में ऑटोमेटिक अपना लाइफस्टाइल चेंज करने का, या ये चीज नहीं वो चीज, वो चीज नहीं वो चीज, बट वो सब चीज में हम दुनिया में इतना खो जाते हैं कि हम परमेश्वर के दूर चले जाते हैं, लेकिन हमको वो चीज पता भी नहीं चलती है। और तब परमेश्वर, जैसे हमारा इस संडे का जो भी मेमोरी वर्स है कि अपने आप को दिन करो तो परमेश्वर आपको एक शिरोमणि बनाएगा। तो अगर परमेश्वर की अगर योजना है कि अपने आप को दिन बनकर अगर शिरोमणि बनाए, तो जो प्राइड है उसमें से उन्हीं लोगों के लिए परमेश्वर वो नीचे भी गिरा सकता है। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रभु चाहे हमारी लाइफ में कितनी भी ब्लेसिंग्स, अर्थली ब्लेसिंग्स क्यों ना आए, बट हमको हमेशा ये याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह और दया है कि आज हमारे पास जो कुछ भी और हम जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ उसकी दया है। और वो चीज सोच के जब हम चलेंगे तो परमेश्वर जरूर हमें एक अच्छा बर्तन बनाने के लिए हेल्प करेगा, मदद करेगा। जैसे परमेश्वर ने 12 चेलों को चुना था, बस जैक हमेशा ये चीज शेयर करते हैं, 12 चेलों को चुना था, इतनी सारी भीड़ में से 12 चेलों को ही चुना परमेश्वर ने। और 12 चेलों में से भी सबसे फेवरेट जो चेले थे वो 2 थे, पीटर और जॉन। मैं सोची थी वो दो ही चेले, बस जैक बोल रहे थे कि इतने वो लोगों का जो जिल था परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए, वो इतना ज्यादा था कि यीशु मसीह, वो बोलते ना एकदम बेस्ट फ्रेंड, हमारे फ्रेंड्स तो होते हैं बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं, उसी तरीके से परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के वो बेस्ट फ्रेंड बन के रह गए, क्योंकि उनके अंदर वो जिल था परमेश्वर के लिए, जो और चेलों के अंदर इतना शायद नहीं होगा या उनसे कम होगा। तो हमारे अंदर जितना जिल परमेश्वर के लिए रहेगा, जितना नम्रता हमारे अंदर रहेगी, परमेश्वर उतना ही अपने को करीब लेकर आएगा और अपने को शिरोमणि बनाएगा। प्रेज गॉड।